aggression. NATO aggression. No to war. No to jingoism. No to jingoism. No to jingoism. We want peace. We want peace. We want peace. No to war. No to war. Jingoism. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਤਕਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਜਮੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਦਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਔਰ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਦਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਾਬ ਸੈਮਸਨ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੂँकि ਅਮਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਚੂँकि ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੰਗ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਦਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ, ਟੈਂਕ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਏ ਸਾਡੀ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਮਨ ਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਇਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਔਰ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੰਗ ਵਧੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ। ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿੰਧ ਧਰਤੀ ਤੋਂ जनाब जामी चांडियो साहब जुड़े ने, वो जुड़े ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। जी प्लीज़। देखें, आज हम तमाम दोस्त यहाँ लाहौर में जो जमा हुए हैं वो अपनी ये ज़मीर की आवाज़ और अपना सियासी नुक्ता नज़र और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आए हैं कि एक तरफ तो हम समझते हैं कि रशिया का जो यूक्रेन पर जिस अंदाज से जंगी अंदाज से कार्रवाई है इसको हम दुरुस्त नहीं समझते, और उसके साथ साथ जब हम रशिया के हमले को यूक्रेन पर दुरुस्त नहीं समझते, जायज़ नहीं समझते, तो बैक वक्त हम ये भी कहते हैं कि यूक्रेन भी एक हथकंडा बना हुआ है नेटो का और वो भी रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। तो जहाँ हम रशिया के इस हमले की मुखालफत करते हैं वहाँ हम यूक्रेन की जो अंदर जो जिस तरह की हुकूमत है, जिस तरह की उनकी पॉलिसी है, जिस तरह की वो नेटो जैसे एक साम्राज्यी इत्तेहाद का हथकंडा बनते हैं और जिससे ख़ुद रशिया को ख़तरात लाहक होते हैं, उसकी भी हम बैक वक्त मज़म्मत करते हैं। तो हम समझते हैं कि आज की दुनिया जिस तरफ जा रही है और जिस तरफ जाना चाहिए उसको, उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम बिलीव करते हैं कि दुनिया के तमाम इंसान आज़ाद हों, दुनिया की तमाम अक़वाम आज़ाद हों, दुनिया की तमाम रियासतें बराबर हों
और किसी फ़र्द को फ़र्द पर, किसी गिरोह को किसी गिरोह पर और किसी रियासत को किसी रियासत पर हमला करने का अख्तियार नहीं होना चाहिए। और दुनिया में जितने मसाइल हैं उन मसाइल का हल पीसफुल मीन से तलाश किया जाए। तो इसलिए ये जो इस वक्त सूरत हाल है, बड़े अरसे से यूक्रेन को इस्तेमाल किया जाता जा रहा है अगेंस्ट रशिया, और अब रद्द-ए-अमल में आकर रशिया ने जो कदम उठाया है वो भी ज़ाहिर है कि मुनासिब नहीं है। तो इसलिए हम आज की दुनिया में इन दोनों रुझानात को दुरुस्त नहीं समझते, उनकी मजम्मत करते हैं। और हम समझते हैं कि नेटो फोर्सेस की ये जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह की जिंगोइज़म है, वो साम्राज्य का तसलसल है और उसमें यूक्रेन को फरीक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के फरीक बनने से रशिया को ख़तरात लाहक होते हैं। और ये जो प्यूटिन की पॉलिसी है, जिसमें उसके दिमाग में यह आ गया है कि वो ज़ारशाही का रशिया बहाल करना चाहते हैं और वो पुराना जो कॉलोनियल दौर का रशिया है वो बहाल हो, हम उसको भी गलत समझते हैं। तो इसलिए इस जंग के नतीजे में, और ये जो एक नेटो फोर्सेस की और साम्राज्यिक क़ुव्वतों की एक हथकंडा बना हुआ है यूक्रेन, उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि उस खित्ते में अमन मुतासर हो रहा है, इंसानी आज़ादियाँ मुतासर हो रही हैं और जो कौमी सलामतियाँ हैं वो मुतासर हो रही हैं। तो हम यहाँ बतौर एक पुरअमन शहरी के अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने आए हैं। जी, मेरा नाम विक्रम मंजूर है और आज हमारा यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम मुल्क पाकिस्तान में की तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। और हम अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस मामले को बैठकर मुज़ाकरात की सूरत में हल किया जाए, ताकि लोग तबाही से बच सकें, ताकि जितनी भी जानें ज़ाया होंगी वो इंसानियत की बेस पे ही हैं, सारे इंसान ही हैं। इस मामले को हल करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये मामला हल होना चाहिए, ताकि जंग ख़त्म हो और सारे अच्छे तरीके से खुशी से ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ीक है और मैं लक्की मोहरत केपी से आया हुआ हूँ और मैं इस रवादारी तहरीक का हिस्सा हूँ। यहाँ पे हम लोग, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे सर जी, हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि जो रूस और यूक्रेन का जंग है, इस जंग के ख़िलाफ़ हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारा ये ईमान है, हमारा ये यकीन है कि जंग कहीं भी किसी भी वक्त मसाइल का हल नहीं है, बल्कि जंग को टेबल पे मुज़ाकरात के ज़रिए से, डायलॉग के ज़रिए से मतलब ये मसाइल हल किए जा सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है वर्ल्ड पावर से भी, रशिया से भी, यूक्रेन से भी, कि जो इनके मसले मसाइल हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पे हल करवाएं और जो जंग है, जंग को फ़ौरी तौर पर रोक लिया जाए और जो नुकसानात हुए हैं उनका भी अजाला किया जाए। जो लोगों को नुकसानात हुए हैं, जो ममालिक को हुए हैं, दाकुम जंग से शुरू दे रूस और दे यूक्रेन पर मंस के गाना दागा जंग दे बंशी जंगे दे मसलो यो हल न देगा ना। जंग सिर्फ इंसानी तबाहिरा वाली नो मुर्दा दलता मुतालबा दा कि जंग दे बंशी और दुनिया ची दे अमन ता यो मौका वर्क लेशी मानना। मां सपना चांडी आया सिंध का आई आया हिते लाहौर ऐं जेको सो असां इहो चाहींदासीं त वार जेको सो कंहिं बि मसइले जो सॉल्यूशन न आहे। वायलेंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। स्टॉप वॉर, नो वॉर, स्पिरिट लव एंड पीस। थैंक यू। मेरा नाम अलीशा शिराजी है और मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हूँ। मुझे नहीं मालूम कि किस मुल्क के किसके साथ मफादात हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि दुनिया में अमन से ही जो है सारी तरक्कियाँ होती हैं। तो मैं अपील कर रही हूँ तमाम उन लोगों से जो इस वॉर का हिस्सा हैं कि इस वॉर को रोकें, क्योंकि उसमें ना सिर्फ बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, मर्द, औरतें सब लोग पीछे जा रहे हैं और हम लोग बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। तो मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए कि हथियारों को बदलें और फूल उठाएं और इस जंग को रोकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शानी है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और मैं भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरा मैसेज ये है पिया कि जंग जड़ी है और कहीं शायद हल कै नहीं। जंग दे वजह तो उत्था कितने लोग मारे वेंदे पैन, स्टूडेंट जड़े हैं शोदे उत्था फसे पैन, जड़े पढ़न वास्ते गए हैं उत्था, क्योंकि उन्होंने वालदेन कितने परेशान हैं पे। तो जंग ही शायद कोई हल कै नहीं। बाहिमी मुशावरत नाल तुसा बह के आपस की गाल मुकाओ तो जंग को रोको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिदा है और मैं सिंध से हूँ और मेरा पैगाम ये है
किसी भी मसले का हल जंग से नहीं है और अमन से ही सब मसले हल से हो सकते हैं। सो आपस में बैठकर बातें करके भी ये मसले हल से हो सकते हैं। तो अमन पे रहकर ही जो है ये जंग ख़त्म की जाए और अमन कायम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबाहत है और मैं चित्राल से आई हूँ। मैं अपने लैंग्वेज में ये बताना चाहती हूँ यूक्रेन और रशिया को कि जंग क्या किशेर हिस्तन वाहिद सलूशन नुहार इ मसलो अमनो सुरदी इगुनसा निशिदी और लो सुरदी मुज़ाकरात सुरह मसलो हल करोनु बोय। Thank you. My name is Tamsil and I am from Rawalpindi, and I want to say that we condemn this war, we condemn violence, we condemn discrimination, and war has never, no one has ever won wars, but the only one that loses is humanity. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रचना माहेश्वरी है। मैं सिंध उमरकोट से बिलोंग करती हूँ और मैं अपनी लैंग्वेज में ये कहना चाहूँगी कि असां जेको तशद्दुद ऐं जंग जे ख़िलाफ़ आहियूं, असां पुरअमन माण्हू आहियूं ऐं असां अमन चाहियूं था। वी वांट पीस एंड वी से नो टू वॉर। थैंक यू। मैं फैज़ अहमद लसबेला बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं जो वार है इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये नहीं होनी चाहिए। यह जेकी वार है या न हुजणु खपे। इन वार जी वजह से मुफ़्त में माण्हू मरनि था खामखा। कुछ हिकु ॿिनि माण्हू जो उनजी वजह से सॼी इंसानियत जो मसइलो थो थी वञे, उनजा राइट ख़राब था थियनि, उनजो खाधे पीते जो मसइलो थो थिए। इन जे अलावा इन जंग जी वजह से दुनिया में महंगाई वग़ैरह भी थिए थी। That's all. This is Nabil Shaheen here and I'm from Lahore. We all are gathered here to protest against the war between Russia and Ukraine. This is our message to convey in all over the world that there is no way of war in this world existing. I just address the Russia and Ukraine and all the NATO powers and USA. Like you learn your previous experiences. Like in previous, when we go in the wars, we didn't get anything. You know very well, and all the world know very well. And we all are gathered here to protest against the war between Russia and Ukraine. And this is request to NATO powers and to America, don't do the dirty politics and don't send this world into the war. Just like you, this is humble request to Russia and Ukraine, you just go on the table and negotiate and solve these issues. There is no way of war in this era, okay? So this is our message and this is done from our side. आज हम यहाँ पे प्रेस क्लब लाहौर के सामने इकट्ठे हैं और हम इसलिए यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी जो है वो जंग ना हो और हम अमन का पैगाम देने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक टेबल पर इकट्ठे हों और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल करें। इसके अलावा वो सारी आलमी बरादरी जो इनको इन्फ्लुएंस कर सकती है और इनके मुज़ाकरात कराने में इनकी मदद कर सकती है, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस मामले में इंटरवीन करें और इस जंग को ख़त्म करें ताकि एक अमन का माहौल जो है दुनिया में वो बरकरार रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज असी प्रेस क्लब के सामने सब दोस्त अहबाब इकट्ठे हुए हैं, अमन दे वास्ते इकट्ठे हुए हैं। इस्लाम अमन दा दस देंदा है। इस्लाम च ईमान दियां 3 खूबियां ने। पहली खूबी है तुसी किसी जुर्म नूं, किसी ऐसी चीज़ नूं अगर तुहानूं अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है तुसी उन्हें अपने हाथ ना रोको। अगर अल्लाह ताला ने तुहानूं इन्नी हिम्मत दी है तो तुसी नहीं रोक सकते, तुसी उन्होंने ज़बान ना बुरा कहो। अल्लाह ताला फरमांदा है अगर तारे च इन्नी हिम्मत नहीं हैगी तुसी उन्होंने कम से कम दिल च बुरा कह सकते हो। इसलिए असी तमाम दोस्त अहबाब अज रवादारी ते ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के सामने आए हैं तो असी एहतजाज करना चाहते हैं कि रूस जिहड़ी ज़्यादती करदा पिया यूक्रेन नाल, साडा सब दोस्तां दी एहतजाज है कि उन्हें फिल फौर ख़त्म किया जाए। और असी रिक्वेस्ट करने पोप फ्रांसिस अगे कि वह मिल के अपने तावन नाल साडा जिहड़ा मसला है यूक्रेन दा उन्हें हल किया जाए। और आलमी बरादरी नूं असी बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मज़ाहिब, मुस्लिम, क्रिश्चन, तमाम बरादरी इस हक च है कि यूक्रेन च जो हालात ख़राब होए ने उन्होंने फिल फौर बंद किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे दिन बाद होवेगा कि तमाम जो लीडर ने वो गर्म जोशी ना एक दूजे नूं गले मिलणगे।
एक दूजे ਨੂੰ ਮੁਸਾਫੇ ਕਰਨਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਦਾ ਬਾਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਦਾ ਲਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ क्योंकि 2 महीने बाद जंगबंदी ख़त्म हो जाएगी तो तमाम लीडर इकट्ठे हो गए एक दूसरे मिलनगे चावा पीनगे नुकसान होगा इंसानियत का तो इसलिए मैं तमाम आलमी बरादरी नूं याद करवाना चाहना वा कि पोप फ्रांसिस नूं याद करवाना चाहना गा कि तुहाडी मेहरबानी तुहाडे अगे रिक्वेस्ट हैगी है कि जो यूक्रेन जंग लगी है ये जंग खत्म की जाए और जो इंसानियत का जुल्म हो रहा है हज़ारां बंदे शहीद हो रहे हैं उनका तो असीं हमायत बाहर निकले हैं और हुकूमत पाकिस्तान उसी मुतालबा करने को जंग लगी है जंग नूं फिलफौर खत्म किया जाए।